السلام علیکم کی پاکستان کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک. اور ناظرین، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی سچویشن ہے اور ابھی جس طرح سے ایجوکیشن ایکٹیویٹیز جو ہیں متاثر ہوئی ہیں اور اس صورتحال میں بہت سے کاروبار، بہت سی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن جو ایجوکیشن ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. اور اسی تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر زیبان، انگلش کے لیکچرار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریجنل مینیجر ہیں دا اسٹریم اسکول کے. اور ان سے جانیں گے کہ یہ آج کل کیا کر رہے ہیں، ان کی لائف کیسے گزری اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایکٹیویٹیز ان کی کیسی چل رہی ہیں. السلام علیکم، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام جی. کی پاکستان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم جیسے استادوں کو بھی پوچھا اور یہ موقع دیا. صحیح. اچھا زیب صاحب، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ کی سچویشن ہے، بہت ایجوکیشن کا نقصان ہوا ہے. ایز اے ٹیچر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ایز اے ٹیچر پہلی بات تو یہ کہ جو ڈیمیجنگ فیلڈز ہیں ان میں جو کووڈ کی وجہ سے بیکاز آف کووڈ اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے. بالکل. ایجوکیشن آلریڈی جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پہلے بھی ہمیشہ سے ایجوکیشن کی منسٹری باٹم سے 3 میں ہی رہی ہے، باٹم سے ٹاپ 3. تو کووڈ کی وجہ سے ایجوکیشن جو ہے بہت بیک فٹ پہ چلی گئی. اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق قریباً ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں 25 لاکھ ٹیچرز جو ہیں پرٹیکولرلی فیمیل سیکٹر وہ ڈیمیج ہوا ان کو. پھر ہمارے کوئی 15,000 سے زیادہ جو انویسٹرز تھے جو ایجوکیشن میں ورک کر رہے تھے انہوں نے بہت سی آڈ اور چیپر جابز کرنا شروع کر دیں اور پھر سے زیرو سے ان کو سٹارٹ ہونا پڑا. اس کے علاوہ جو 1.5 ایئرز 1.5 سال گزرا بچوں کا، وہ تو بہت ہاریبل گزرا. اور یہ پیرنٹس اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 1.5 سال کیسے انہوں نے گزارا، کہ ان کو بچوں کو کنٹرول کرنا اور ان کو ٹریک پہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. لیکن اس دوران میں دیکھیے بچوں کی جہاں ایجوکیشن متاثر ہوئی، بہت سے لوگوں کے روزگار بھی متاثر ہوئے. ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن اگر بات کر لیتے ہیں، بہت سے ٹیچرز جن کی جاب سے لگی انہیں سیلریز نہیں ملی، لیکن بہت سے لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ اسکولز والے جو ٹیچرز کو تو تنخواہ شاید نہیں دے رہے تھے، لیکن جو بچے ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان سے جو فیسز ہیں وہ مکمل طور پہ وصول کر رہے تھے. جس پر ہم نے سوشل میڈیا پہ کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کتابیں جلائی جا رہی ہیں، غصے سے برہم ہو گئے، مختلف قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، یہ وہ. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مس ملکہ، آپ یہاں پہ جو ہے نا اس طرح سے دیکھیں گے کہ جاپان کی ٹرین کو پاکستان کی ٹرین کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے. لیکن سر دیکھیں پوری دنیا کووڈ سے متاثر ہوئی ہے، لیکن ایجوکیشن جتنا پاکستان میں متاثر ہوئی ہے شاید اور کسی ملک میں، یہ کس کا فیلئر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں بھی جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ باٹم میں ٹاپ 3 پہ ہے. ابھی بھی جو موجودہ ابھی بجٹ ہوا اور بجٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایجوکیشن کو ملا کیا. اور ابھی جیسے آپ نے تذکرہ کیا تو یہ آپ نے A گریڈ اسکولوں کا تذکرہ کیا. اگر آپ O لیولز میں آ جائیں تو ہے کتنے 0.2 میں ہم چلے جاتے ہیں. وہ تو اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اصل جو ہے ہمارے پاس وہ C کلاس ہے. ایسا ہی ہے، A کو بھی چھوڑ دیں، B کو بھی چھوڑ دیں، C پہ آ جائیں. C جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے بہت زیادہ، ڈیٹریوریٹ ہوا ہے. ڈیٹریوریٹ کیا ہوا ہے؟ وہ تو بالکل ہی ایک دم سے نیچے اسٹیپ میں گیا ہے. صحیح. اچھا زیب صاحب، جس طرح سے جیسے ہی کووڈ سچویشن سٹارٹ ہوئی، والدین کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. اس پہ جا کے گورنمنٹ کی جانب سے جو پرائیویٹ ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے ایک آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا. آپ اس آن لائن ایجوکیشن کے سلسلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بچہ اس سے کچھ سیکھ رہا ہے یا وہ صرف ٹیچر کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے؟ اور ٹیچر کس طرح سے پڑھا رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا بہت سے ٹیچرز بس اس کو آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بچے بھی اپنا کھیل رہے ہیں، ٹیچر بھی اپنے کام کر رہے ہیں. اس تمام تر چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نئی چیز تھی ہمارے لیے بھی، نئی چیز تھی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اور زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ تھا اس کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا. بالکل. پیرنٹس ریڈی نہیں تھے کہ وہ اپنا موبائل 4-6 گھنٹے کے لیے دیں. ایک پیرنٹ نے تو مجھے ایک دفعہ کہا جی کہ میں اپنے بچے کو ڈانٹا لگائی بھی ریزن کہ جی میرا 450 کا نیٹ اس نے یوز کر دیا اور آخر میں کہتا ہے مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا. میں نے MBBS کے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو اپنے لیکن سر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ٹیچر ہے اور وہ کلاس میں موجود 30 سے 40 اسٹوڈنٹس کو کلاس دے رہا ہے؟ اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہے شاید؟ جی
क्लास में बिल्कुल देखिए, क्लास में तो हम आर्टिस्ट लोग हैं ना, हम किसी ना किसी तरह से अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं। वो टीचर ही नहीं है जो आर्टिस्ट ना हो, जो जितना अच्छा आर्टिस्ट होगा उतना अच्छा टीचर है, तो वहाँ हम किसी तरह डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ इसमें देखिए एक और बात आपको बता दूँ, ऑनलाइन में तो ये डन हो गया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बिल्कुल क्लास के अंदर हमने सिर्फ किताबें टीच नहीं करनी जो हमने ऑनलाइन में की है, बल्कि वहाँ हमने उनको उठना बैठना सिखाना है। हमने घर से बिस्तरों से उठा के वक्त पे इन भी करना है। वहाँ हमने उनको पीटी भी करवानी है। वहाँ हमने उनको ब्रेक देनी है और ऑर्गेनाइज तरीके से फिर ब्रेक से वापस भी बुलाना है। तो स्टूडेंट वहाँ पे सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आता, मैनर्स भी सीखता है। वो अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करने आता है, अपनी सेल्फ को डेवलप करने आता है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने हमारे पास आता है। तो वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। सही। अच्छा, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ज़ेब साहब आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, बेदरिग इस्तेमाल हो रहा है, उससे एजुकेशन कई हद तक मुतासर हो गई है? किताबों वाली जो ज़िंदगी थी, जो लोग बच्चे किताबें पढ़ते थे, वो कई हद तक ख़त्म हो गई है। ये कितना बड़ा नुकसान समझते हैं आप? एक अच्छा लीडर तो नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छा लीडर जो है वो रीडर ज़रूर होता है। बिल्कुल। लिंकन ने कहा था अपने बेटे के टीचर को कि अगर हो सके तो मेरे बेटे को सिखाओ कि किताबों में ट्रेजर्स हैं, ख़जाने हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो बच्चा है वो तो किताब भी वो बड़ी मुश्किल से अपने सिलेबस ही ख़त्म करता है, इस डर से कि उसको पेपर देना है। और अभी आप देखें कि कितना प्रेशर बिल्ड किया बच्चों ने कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पे हम आ गए। बिल्कुल। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट भी आउट हो गया। अब जब एफएससी करके बहुत से स्टूडेंट फॉरेन लैंड्स में जाते हैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए, फॉरेन क्वालिफाइड होने के लिए, तो उनको एक तो आइल्ट्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब उन पे ये भी एक मोहर लग जाएगी कि ये बग़ैर इंग्लिश का पेपर दिए हुए हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ही इंग्लिश। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस कैरियर में कब से हैं, और जब से आपने एज अ टीचर अपने कैरियर का आगाज़ किया उस वक्त से लेके अभी तक आप स्टूडेंट में वक्तन फ़वक्तन क्या कमी देख रहे हैं? कि क्या चीज़ जो है वो शुरू में आपने देखी और अब उस चीज़ में कमी आती जा रही है? पहले वो चीज़ कम थी, अब वो चीज़ बेहतर हो रही है? दो आगे, एक तो आपने मेरे मुतालिक क्वेश्चन किया, 20-21 साल से ज़्यादा हो गया इस दश्त की स्याही में। उसमें पहले इल्म होता था, अब तालीम आ गई हुई है। पहले लाइब्रेरियाँ नहीं थी, हिकमत और दानाई बहुत थी। अब लाइब्रेरियाँ आ गई हैं तो हिकमत और दानाई ख़त्म हो गई है। अब तालीम ही तालीम है। और ए ग्रेड स्कूलों का हमने तस्करा किया तो खुल के बात करना ज़रा अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने, अदरवाइज़ कभी आप उनकी मॉरल कंडीशन खुद जाके देख लें तो पेरेंट्स भी जो है हमें रिक्वेस्ट कर कर के तंग आ गए हैं कि इनकी मॉरल वैल्यूज़, इनके एथिक्स को थोड़ा सा उठाएँ। सही। अच्छा, चलिए, ये तो तमाम तरह एजुकेशन के हवाले से अगर हम जितनी बात करें वो तो इतना ड्रैग हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आज का एजुकेशन सिस्टम, कोविड की सिचुएशन और उसके साथ साथ जो पस्ती है, उसके साथ साथ जो हमारी दीनी तालीम है, उसको हम देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनको शायद डिस्कस किया जाए। खैर, आपके बारे में बात करते हैं। आपकी हमने जब प्रोफाइल देखी तो आपके पास 100+ जो प्राइजेस थे, शील्ड्स थी, मौजूद थी। क्या क्या एक्टिविटीज़ ज़िंदगी में करते रहे जिसमें आपकी अगर देखा जाए तो तकरीरी मुकाबले हैं, उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ आपने लिया हुआ है, सिंगिंग में फ़र्स्ट प्राइज़ लिया हुआ है, नात ख़्वां हैं आप, उसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, हर किस्म के इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज़ किए। और ये चीज़ें मैनेज कैसे की, और थोड़ा सा अगर हमारे व्यूवर्स को बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं और हैं अब भी। खुलूस हो तो दुआ में असर भी आता है, शजर हरा हो तो समर भी आता है, और फलक नशी सही मेरा खुदा लेकिन मोहसिन कभी कभी वो ज़मीन पे उतर भी आता है। जब आप अपने शौक़ में पैशन डालते हैं, अपने काम में पैशन डालते हैं, और मैं अगर बताऊँ तो मैंने काम नहीं किया, मैंने मोहब्बत की है अपने काम के साथ, क्योंकि जो
लोग काम को काम समझ के करते हैं वो थक जाते हैं, और जो मोहब्बत समझ के करते हैं वो थकते नहीं हैं, और बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं वो छोटे छोटे झगड़ों में भी नहीं पड़ते। सही, ठीक हो गया। तो इसको यूँ था कि जनरल हयात साहब थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, कश्मीर प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कश्मीर में एजुकेशन को फ्री किया। उनके साथ ऑल पाकिस्तान यूथ काउंसिल में चेयरमैन एजुकेशन विंग वर्क करते रहे, डिबेटर भी रहे, ओरेटर भी रहे, कंपेयर भी रहे। ये सारी सिफ़ात कमालात मेरे अल्लाह ने दिए हुए हैं मुझ में। मुझे तो खुद भी समझ नहीं आया कि मैं कैसे इतने बड़े बड़े काम और इतने ज़्यादा इकट्ठे कर गया। तो सब कमाल उसी का है, उसी ज़ात का है। जितना दिया उससे मुझको मेरी इतनी औकात नहीं थी। सही। अच्छा ज़ेब साहब, ये बताइएगा कि हर इंसान, चूँकि आप जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें साथ साथ कर रहे होते हैं, साथ साथ उनको लेके चल रहे होते हैं, वो साथ साथ हम अपने नाज़रीन के लिए डिस्प्ले पे भी लेके आएंगे वो चीज़ें। लेयर टाइम एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी, क्या कर रहे होते हैं, घर में कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, बच्चों के साथ अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं? वेरी टफ, but everything is difficult before it's easy. Leisure time activities, they're very important to keep you normal. बड़ी अहम है। हाँ, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए आपको ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली आपको ट्रैक पे रखती हैं। ऐसे ही। और आपके जो आपके घर के लोग होते हैं वो तमाम उम्र के लिए आपके लिए वाइटामिन्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका आपने ख्याल रखना है और वो आपका ख्याल रखेंगे। और सबसे अहम ये है कि पेरेंट्स को रोल मॉडल दिखना चाहिए। वो बड़े खुशकिस्मत पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे, हाँ जी, उनको बोलने से नहीं बल्कि उनको देख के सबक हासिल करते हैं, इंस्पायर होते हैं। उनके इंस्पिरेशन उनके पेरेंट्स होते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो मैनेज करते हैं इसको। संडे ख़ास तौर पे आई ट्राई एब्सोल्युटली कि मैं अपने टाइम को स्पेयर रखूं अपने घर के लिए। सही। और इसके अलावा डेली कोशिश ये भी होती है कि एक मरतबा मेरी शक्ल मेरे बच्चे ज़रूर देख लें, कि जब फादर की शक्ल देख लेते हैं तो उनकी जो साइकोलॉजी है वो बड़ी लेवल पे रहती है। अदरवाइज़ वो ट्रैक से उतर भी जाते हैं, और ट्रैक से उतर जाएं तो फिर ट्रैक पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया का आपने तस्करा किया, तो हमारे मुल्क में ये भी एक ट्रेंड है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम ज़्यादातर उसका नेगेटिव यूजेज करते हैं। ऐसा ही है। पॉजिटिव यूजेज जो है वो कम होता है। तो हमारे बच्चे भी उसी में फॉल कर रहे हैं, और ये बड़ा बहुत टफ टाइम गुजर रहा है इस वक्त। बच्चे को एजुकेशन देना, हमारी जो एजुकेशन है मैम, उसमें ये था कि हम टीचर्स ने 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी थी। नंबर 1 एजुकेशन, तालीम, नंबर 2 तादीब, आई मीन ट्रेनिंग, और नंबर 3 रिस्पेक्ट, सही, इज़्ज़त देना। लेकिन अब बदकिस्मती ये अनफॉर्चुनेटली कि ये डिटेरियोरेट हो गए और वो इल्म भी सिर्फ तालीम पे आ गया। सही। अब इल्म जो है असल में यहाँ बात थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन इल्म पे आ गई तो मेरे दिन में क्लिक हो रहा है। किसने पूछा कि जी इल्म क्या है? तो इल्म ये है कि आप जानो कि आपका खालिक कौन है। सही। नंबर 2 आप जानो कि आप खुद कौन हैं। नंबर 3 आपका मकसद क्या है। और नंबर 4 ये कि आपसे क्या पूछा जाएगा। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू का कौल इसमें मुझे याद आ रहा है। आप फरमाते हैं, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। आपसे 1000 साल पहले, यानी आज से 2500 साल पहले सोक्रेटिस कहता है नो दाई सेल्फ। फिर हज़रत अली करम अल्लाह वजहू आप फरमाते हैं कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, इफ़ यू नो दाई सेल्फ यू विल नो गॉड ऑलमाइटी। अगर अपने आप को जान जाते हो तो फिर अपने अल्लाह को पहचानोगे। फिर हम देखते हैं इकबाल का दौर आता है। इकबाल कहता है कि खुद को इस लेवल पे ले आओ कि अल्लाह तुमसे पूछे कि रज़ा क्या है तुम्हारी। सही, ठीक। लेकिन बैड लक, उससे बहुत दूर से दूर चले जा रहे हैं हम लोग। ठीक है नाज़रीन, आज चूँकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है और तालीम की जब बात की जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो उसमें बहुत दिल कह रहा होता है कि कुछ नई चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाए। बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस किया जाए। बहरहाल आज के प्रोग्राम से फ़िल वक्त इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद भी इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आएँ। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आप एहतिताम कीजिएगा अपने शेर से। शेर बहुत वक्त हो गया, कभी हम भी खूबसूरत थे। कहता है कि गुलाब हाथ में हो, आँख में सितारा हो,
कोई वजूद तो मोहब्बत का इस्तारा हो और कभी कभार उसे देख लें, कहीं मिल लें। हमने ये कब कहा कि वो खुश बदन हमारा हो और कोई कसूर हो हमारे हिसाब में लिखा जाए। मोहब्बतों में जो एहसान हो तुम्हारा हो। और यूं भी दूर दूर रहते थे, यूं भी दिल में एक कदूरत थी। तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत थी। और आखिर में मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे नाम को लिखना। कभी बूढ़े दरख्तों पे, नई आई किताबों पे, कभी दरिया के साहिल पे, कभी अनजान रस्तों पे। मगर जो बीत जाता है वो लम्हा फिर नहीं आता, कि जैसे रूह का घाव कभी भर नहीं पाता। मैं जानता हूँ मगर फिर भी मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे नाम को लिखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।